Hello everyone, through this video we will understand the types of damages for breach of contract. So before understanding the types of damages, it is important to understand that what are the types of remedies of a contract, because damages is although one of the most prominent form of remedy for breach of contract, but it is not the only remedy for breach of a contract. So basically we have the 5 different types of remedies. First is damages, then there is specific performance, which is provided under Specific Relief Act 1963. Then there is remedy of injunction, which is again provided as per the Specific Relief Act, and it has to be read with Code of Civil Procedure 1908. Then there is remedy of recession, which is again provided in the Specific Relief Act. And then there is quantum merit, where there is payment for the work done, for the part work which is done. So this video will specifically focus on the types of damages only, not the other types of remedies. So normally these are the types of damages. First is ordinary damages, then there is special damages, then there is exemplary damages, nominal damages, liquidated and unliquidated damages. But for the purpose of contract, it is essential to note that only the liquidated and the unliquidated damages are more prominent, or we can say the ordinary and special damages. Normally exemplary and nominal damages are more relevant with respect to the law of torts and not with respect to contract. But although all these are categories, so we must be aware of what are the categories. So first is ordinary and special damages. So ordinary damages are granted for breach of contract. Now what are ordinary damages? Ordinary damages होते क्या हैं? Ordinary damages वो होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, which arise naturally from the breach of contract. जब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होगी, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो नॉर्मली इस ब्रीच से क्या क्या डैमेजेस अराइज होंगे, क्या और डैमेजेस और डैमेज में डिफरेंस है. डैमेज मीन्स द इंजरी एंड डैमेजेस मीन्स द लॉ द कंपनसेशन विच हैज़ टू बी पेड. तो जब कोई इंजरी हुई, लीगल इंजरी हुई, तो उसके लिए क्या कंपनसेशन देना चाहिए, ये दो चीज़ें हो सकती हैं. एक तो नॉर्मली वो राइज हो वो मिले, और एक आपने खुद डिसाइड कर रखा है कि नहीं, ऑल दो इंजरी तो हमारी जो डैमेज हो रहा है वो 10,000 का है, बट हम 1 लाख पे करेंगे फॉर डैमेजेस, तो वो स्पेशल हो गया. फिर वो नेचुरली नहीं है, बट वो आपने डिसाइड कर लिया इस तरीके से. तो सेक्शन 73 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डील करता है ऑर्डिनरी डैमेजेस से, और जो सेक्शन 74 है वो डील करता है स्पेशल डैमेजेस से. अब पहले देखेंगे कि ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है. तो ये सेक्शन 73 है. अब सेक्शन 73 क्या कह रहा है? कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज caused by breach of contract. When a contract has been broken, the party who suffers from such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach. ये important है, which naturally arose from the usual course of things from such breach. It means damages उतना ही मिलेगा आपको जितना नेचुरली उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से हुआ है. उसके अलावा जो भी डैमेजेस आपको हुए हैं विच आर नॉट नेचुरली अराइजिंग फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको नहीं मिलेंगे. और ये अदर देन नेचुरली अराइजिंग कौन से होंगे? जो रिमोट हैं. जैसे रिमोटनेस ऑफ डैमेज का कंसेप्ट है, मतलब रिमोटनेस का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द ब्रीच. ऑल्दो आपको कुछ इंजरी हो सकती है, बट हर जो इंजरी है आपको, जो डैमेज आपको हुआ है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्टली ब्रीच से ही हुआ है. हो सकता है ब्रीच से एक डैमेज हुआ हो और उस डैमेज की वजह से कोई और डैमेज हुआ हो. अभी हम एक केस के थ्रू यही समझेंगे कि जब कोई रिमोट डैमेज होता है आपको, जो डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से हुआ है, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है. सेक्शन 73 में ऐसा लिखा गया है. सो इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे समझना कि द डैमेज मस्ट अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग. यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग मतलब नॉर्मली जब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डील किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उससे नॉर्मली जो डैमेजेस होते हैं वो मिलेंगे.
अगर ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरे एक्स गुड्स को किसी लोकेशन वाई लोकेशन पर उन्हें डिलीवर कर दो, तो अगर वो डिलीवर नहीं होते और अगर गुड्स 1000 के हैं तो 1000 रुपीज़ उसको बी जो है वो ए को पे करेगा। तो नेचुरली है कि नॉर्मली जितने का अमाउंट, जितने के गुड्स थे उनका जो ना पहुंचने से जो प्रॉब्लम हुई है तो उसको 1000 दे देगा वो। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, अब यही 1000 के ही गुड्स हैं, लेकिन अगर ये वाई लोकेशन पर सप्लाई नहीं हुए तो मुझे फिर 10 लाख चाहिए। तो ये नॉर्मल नहीं है, अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, ये स्पेशल है, ये पार्टीज़ ने डिसाइड किए हैं। तो अब अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डैमेजेस चाहिए तो वो फिर आपको डिसाइड करना होता है, और वो सेक्शन 74 डील करता है। 73 में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डैमेजेस का कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। और यही नेक्स्ट लाइन सेक्शन 73 की हमें यही बता रही है, सच कंपनसेशन इज़ नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन बाय रीजन ऑफ ब्रीच। इट मीन्स जो रिमोट है मतलब दूर का लॉस है, इनडायरेक्ट है मीन्स उसमें और ब्रीच में और उस लॉस के बीच में काफ़ी सारे और इवेंट्स हैं जिसकी वजह से वो आपको लॉस हुआ है, तो उसके लिए आपको कंपनसेशन ब्रीच सेक्शन 73 में नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, और इसमें बस इतना लिखा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी जो कंपेंसेशन होगा वो वैसे ही मिलेगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि केस क्या है। तो ये जो केस इसमें लिखा हुआ है हेडले वर्सेस बैक्सनडेल इज़ अ केस रिलेटिंग टू सेक्शन 73। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो डिफेंडेंट था उसको सप्लाई करना था, उसको वो बेसिकली डिलीवरी कंपनी थी, और उसको एक प्लेंटिफ की एक मशीन का पार्ट था, क्रेन शाफ्ट जिसका नाम है, उसको डिलीवरी करना था ताकि वो रिपेयर हो सके। वो बेसिकली डिफेंडेंट का काम सिर्फ डिलीवरी का था कि वो डिलीवर कर देगा रिपेयरमैन के पास, और वो डिलीवर होकर चली जाएगी थ्रू द डिफेंडेंट, और फिर रिपेयर होकर वो आ जाएगी और उसकी मिल में वापस से काम शुरू हो जाएगा। बट होता क्या है कि जो डिफेंडेंट है वो डिलीवरी करने में डिले कर देता है, तो टाइम पर डिलीवरी ना होने से जो प्लेंटिफ की मिल है उसमें काम रुक जाता है, और प्लेंटिफ को के यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, और प्लेंटिफ को बिजनेस का लॉस होता है। तो प्लेंटिफ कहता है कि मुझे अब लॉस ऑफ प्रॉफिट चाहिए। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस का मेरे लॉस हुआ है, जो मैं अर्न नहीं कर पाया पैसे, वो उतना मुझे कंपनसेशन चाहिए। मुझे सिर्फ इतना नहीं चाहिए कि जितना मेरे क्रेन शाफ्ट जितने की थी, मुझे उतना नहीं चाहिए, मुझे जितना मेरा बिजनेस का लॉस हुआ है मुझे वो कंपनसेशन चाहिए। तो इस केस में ये इंग्लिश केस है, और इस केस में कोर्ट ने प्रिंसिपल इवॉल्व किया कि नॉर्मली जब कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नॉर्मली आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा वो ये स्लाइड में लिखा हुआ है। इट मीन्स आपको वो डैमेजेस मिलेंगे विच अराइज नेचुरली अकॉर्डिंग टू द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। मतलब नॉर्मली उस ब्रीच से जो लॉस होता है सब उतना मिलेगा। यहाँ डिफेंडेंट को नहीं पता था कि अगर प्लेंटिफ की मिल इतने 5 दिन काम नहीं करेगी तो उसको बिजनेस का लॉस होगा। तो डिफेंडेंट की कोई लायबिलिटी नहीं थी, बिकॉज उसको ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं कि मिल, ये प्लेंटिफ ने नहीं बताए थे कि अगर मेरी मिल नहीं चलेगी तो मुझे ये लॉस होगा वो लॉस होगा, ये सब नहीं बताया था। तो वो तो नॉर्मली वही पे करेगा ना, जो नॉर्मली उसको जितने दिन उसका काम नहीं चला बस उसका प्रोडक्शन का वो पे कर देगा जो लॉस हुआ है बस। वो थोड़ी ना उसको जो बिज़नेस का लॉस हुआ है, जो उसे प्रॉफिट अर्न करना था उसका जो लॉस होगा उसको भी पे करेगा। यही कोर्ट ने कहा कि आप नॉर्मली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमाउंट नहीं मांगेंगे अगर वो सामने वाली पार्टी को पता नहीं है। और सेकेंडली, पहला तो है नेचुरली अराइज होना चाहिए वो लॉस, और सेकेंडली रीजनेबली इन कंटेम्पलेशन ऑफ बोथ द पार्टीज। इट मीन्स रीजनेबली कंटेम्पलेशन मतलब दोनों पार्टीज़ को पता हो, दोनों पार्टीज़ की नॉलेज में होना चाहिए कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो हमारी लायबिलिटी कितनी है। ऑल्दो वो हो सकता है वो ज़्यादा भी एग्री कर लें, लेकिन अगर पता है तो फिर मिल जाएगा। इट मीन्स वो पता होना चाहिए, अब नॉलेज होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ को। एक के सोचने से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेक्शन 73 से रिलेटेड, क्योंकि सेक्शन 73 भी ये था कि नेचुरली जो अराइज होंगे डैमेजेस वो उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के लिए। अब समझते हैं सेक्शन 74 जो कि स्पेशल डैमेजेस की बात करता है।
इसमें लिखा है कंपेंसेशन और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन पेनल्टी स्टेपुलेटेड फॉर। सेक्शन 74 उन सर्कमस्टांसिस की बात करता है जहाँ पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए आपको कितना कंपनसेशन चाहिए। तो इसमें बताया है कि आप फिर जितना डिसाइड करेंगे वो आपको मिलेगा। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन से समझते हैं, इसका इलस्ट्रेशन है ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी to pay B rupees 1000 if he fails to pay B rupees 500 on a given date। A ने कॉन्ट्रैक्ट किया B के साथ कि अगर मैं तुम्हें 500 रुपये एक किसी पर्टिकुलर दिन को नहीं दे पाया, सपोज मंडे को, तो उस ना देने पाने की वजह से मैं तुम्हें फिर 1000 दूंगा। अगर ये 1000 नहीं लिखा होता तो नॉर्मली वो कितने देता, उसको 500 ही देता। बाद में भी अगर बी कोर्ट में जाता तो बी को 500 ही मिलते। लेकिन यहाँ ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट में खुद ही डिसाइड कर लिया कि ब्रीच होने पर स्पेसिफिक डे पर 500 रुपये न दे पाने पर ए जो है वो 1000 देगा, और ए फिर क्या करता है, फेल हो जाता है। तो इसमें लिखा है बी इज एंटाइटल टू रिकवर्स फ्रॉम ए सच कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 1000 एज द कोर्ट कंसिडर्स रीजनेबल। तो ऑल दो यहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन है, बट आप देखोगे उसमें मैक्सिमम लिमिट 1000 तक है। ऐसा नहीं कि कोर्ट की लिमिट 500 तक है। तो इट मीन्स अगर आप पार्टीज़ ने खुद डिसाइड लिया तो कोई लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये प्राइवेट लॉ है, ये सिविल लॉ है, और पार्टीज़ अगर एग्री कर रही हैं किसी कंसिडरेशन के लिए या फिर किसी डैमेजेस के लिए, और वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या इलीगल नहीं है, तो फिर लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अलाउ कर रहा है। तो यही पॉलिसी है इसके पीछे। तो ऑल दो अमाउंट ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिकॉज जो पेमेंट करना था वो 500 करना था, बट जो पेनल्टी लग रही है ना पे करने पाने वो 1000 की लग रही है, बट स्टिल इट विल बी अलाउड बिकॉज वो पार्टीज़ ने डिसाइड किया है। तो ये होते हैं सेक्शन 74 के स्पेशल डैमेजेस। जब पार्टीज डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितना पे करना है, तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डैमेजेस दिए जाते हैं, ना कि ऑर्डनरी डैमेजेस। बट अदरवाइज सिर्फ ऑर्डनरी डैमेजेस ही मिलते हैं, जैसे 73 में होता है। अब नेक्स्ट है नॉमिनल एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस बेसिकली बस इसलिए दिए जाते हैं, ऑल दो आपको कोई लॉस नहीं होता है उसकी सिचुएशन में, नॉमिनल डैमेजेस के केस में, बट वो इसलिए दिए जाते हैं बस टू शो कि आपके पास एक राइट तो था। बिकॉज देर इज़ अ प्रिंसिपल दैट ओबिजस बी रेमेडियम, इट मीन्स वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी। सो इफ़ यू हैव अ राइट तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी रेमेडिफाइड, ऑल दो आपको एक्चुअल लॉस ना हुआ हो। तो इसलिए नॉमिनल डैमेजेस में जो डैमेजेस का अमाउंट होता है वो भी बहुत कम नॉमिनल होता है, कम होता है, बिकॉज हमें बस ऐसे शो करना है कि दैट देयर वॉज अ राइट एंड देयर इज़ अ रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ दैट राइट। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए, तो इट मीन्स ये इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होते हैं, ताकि सब्सिक्वेंटली वो जो ब्रीच है वो ना हो। बट ये टॉर्ट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में उतने रेलिवेंट है नहीं। इसके बाद लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय फिक्स कर लिए हैं।